Hello everyone. So now we are starting with the topic alcohol, phenol and ether. In this particular topic, first of all we'll have the introduction and the classification of alcohols and hydroxy derivatives. Basically, एक simple idea है, you take some hydrocarbon, let's say alkane CnH2n plus 2. From that alkane hydrocarbon, we remove the hydrogen. One or more hydrogen atoms are removed, and after removing the hydrogen there will be a free valency, तो ये हो जाएगा CnH2n plus 1, and on that free valency जहां से एक हाइड्रोजन रिमूव किया है there we will attach a OH group, right? So that's hydroxy derivative we have got is called alcohol. So hydroxy derivative of aliphatic hydrocarbon, ये जो है ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? ये एल्केन लिया है, alkane is a aliphatic hydrocarbon. You may take alicyclic also. Aliphatic और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल, ठीक है? हियर I may take some alicyclic compound also like cyclohexane. This is C6H12, cyclohexane एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और इसमें से हम रिमूव करेंगे हाइड्रोजन. फ्रॉम दिस वी सिंपली रिमूव one hydrogen, and on the place of hydrogen we attach one OH group, right? So this is cyclohexane, और cyclohexane में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो C6H11 free valency, and on this free valency we will attach the OH group. So they are called as alcohol, right? So hydroxy derivative of aliphatic, or you can add alicyclic hydrocarbon is called alcohol. But instead of aliphatic or alicyclic, suppose हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, लेट्स से बेंजीन C6H6, और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, that will become C6H5 free valency, right? Now this benzene we have removed one hydrogen, तो इस बेंजीन के ऊपर एक फ्री वैलेंसी होगा, कहीं से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ऑल कार्बन्स आर सेम, तो किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया फ्री वैलेंसी, और वहां पे अटैच कर दिया OH. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू अंडरस्टैंड, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटाकर OH ग्रुप अटैच करेंगे तो जो प्रोडक्ट है दैट इज नॉट कॉल्ड अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड फिनॉल. बेसिकली दे आर बिहेविंग लाइक टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. अल्कोहल्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और फिनॉल की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग, alcohol phenol are not same compound. Alcohol phenol are not same compound, they are hydroxy derivative of hydrocarbon. अगर एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया है तो उसको बोलते हैं अल्कोहल,
और अगर एरोमेटिक में OH ग्रुप अटैच किया है देन इट इज कॉल्ड एज फिनॉल, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, दिस एरोमेटिक रिंग इज प्रेजेंट, और इस एरोमेटिक रिंग में हमने अटैच किया है this. Now in this case we consider two conditions. Condition number one is, ये जो ओपन बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग के साथ हमने OH ग्रुप अटैच किया. Let's say first we draw the structures required, right? Now here one CH3 group is attached. We do not change this CH3 group, we attach OH group somewhere in the benzene ring, and here benzene ring is present but OH group is being attached to the external carbon, aliphatic carbon. So in this first case ये जो बनेगा इस डेरिवेटिव को हम कहेंगे फिनोलिक डेरिवेटिव. ये फिनोलिक कंपाउंड है, ये अल्कोहल कंपाउंड नहीं है बिकॉज OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द एरोमेटिक न्यूक्लियस. और सेकंड केस में OH ग्रुप एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं है, OH ग्रुप बाहर वाले कार्बन के साथ अटैच है, सो वी विल कॉल इट एज अल्कोहल, right? If you write the common name of this compound is benzyl alcohol, benzyl alcohol, and this compound common name is cresol, orthocresol. So basically it's very important, अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है देन कैटेगरी इज द फिनोलिक, और OH ग्रुप एरोमेटिक रिंग इज प्रेजेंट but OH group is attached to the aliphatic carbon, we'll call it as alcohol, and to be more precise we can say aromatic alcohol. Phenol and aromatic alcohol are isomers of each other, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, but one is phenolic and another is aromatic alcohol, they are isomers of each other. One simple extra thing we need to understand here is, suppose I write a compound CH3 C double bond O OH, or if I write a compound CH3 C H OH NH2. In both the compounds here we are having hydroxyl group. In both these compounds we are having hydroxyl group. Although both are having hydroxyl group but they both are not alcohol. इस कंपाउंड में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और हमें पता है ये कंपाउंड अल्कोहल नहीं है, ये एसिटिक एसिड है, राइट. यहां पे भी OH ग्रुप है बट दिस कंपाउंड इज नॉट कॉल्ड अल्कोहल. इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड अमोनिया. When hydroxyl group is present, why we are not calling these compound as alcohol? The reason is, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, this carbon should be attached to only carbon or to the hydrogen. यहां पे देखो, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है इन दिस कंडीशन, उस कार्बन से NH2 अटैच है. जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है
वो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, इसका मतलब ये हमारी कंडीशन फॉलो नहीं करता है। कंपाउंड को अल्कोहल बोलने के लिए या फिनॉल बोलने के लिए OH group is attached to that carbon which is further attached to carbon और हाइड्रोजन ओनली। ये कार्बन कितने भी कार्बन से अटैच हो सकता है, जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। दिस कार्बन कैन बी अटैच टू एनी नंबर ऑफ कार्बन और एनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इस कार्बन पे कोई और एटम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, राइट। जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल अटैच है, अगर उस पे कोई और एटम अटैच है जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन और समथिंग एल्स, देन वी डू नॉट कॉल दैट कंपाउंड एज alcohol, right? So this is about the introduction of alcohol and phenol.